Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So do subscribe to my channel if you have not subscribed yet. And thank you so much who already subscribed to my channel, because I have completed my 1000 subscriber because of you. So thank you so much for subscribing my channel. So in today's video, I'm going to discuss some predictions, November prediction you can say, of reading filling the blanks, because most of the students feel difficulty to solve reading filling the blanks, because they say कि ma'am, in reading and writing filling the blanks we will get 4 options for one particular blank, so sometime we can select the good option, means the right option for that particular blank. But in reading filling the blanks, because reading filling the blanks is contributing 15 marks in the reading filling the blanks, so the main problem is that ki you will get the blanks like this, but you will get option near this, means you will get all the option below the blank. So sometime it is difficult for students to choose the right option, because most of the students will stuck on some particular options. Because students क्या करते हैं, they will focus on these first 2-3 blanks, means then the options are given here. After that they will try to focus on that particular blanks, means their focus is on this option and on these options also. So this is the main problem. And second problem is that ki they will choose the wrong option in the first blank. So if the first answer is incorrect, then it's ki you will get all the options, you will get all the answers incorrect. बिकॉज अगर आप जो पहली ब्लैंक है वो ही गलत फिल कर रहे हो, तो इट्स दी 100% पॉसिबिलिटी कि जो आपकी नेक्स्ट ब्लैंक्स होंगी वो भी गलत होंगी. सो यू हैव टू चूज़ द राइट ऑप्शन, मीन्स यू हैव टू चूज़ कि जिस ब्लैंक में आप 100% श्योर हैं कि दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दैट ब्लैंक, सो आफ्टर दैट you can choose other options for that particular blanks, because there is no negative marking in reading filling the blanks. So fill all the options, do all the blanks, and you can only spend 2 minutes on one paragraph, and you will get 4 to 5 paragraphs in the final PT exam. So be prepared, because you will get the paragraphs like this. The paragraph will like 200 words approximate, but the blanks are like this. So you have to choose the correct options. Now in today's video I am going to discuss some most repeated, or you can say November predictions of reading filling the blanks, because my motive to make these videos is like that कि जो कुछ students हैं they can't afford the tuitions, they can't afford institutes to pay like to learn PTE. So my main motive to make these videos, so I will clear these reading filling the blanks in, you can say कि I will explain all the terms, so I will explain the paragraph so that you can get good score. So main motive टू मेकिंग दीज वीडियोज़ इज़ कि जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम नई कोचिंग ले सकते, बट दे वांट टू अपेयर इन द पीटी एग्ज़ाम, सो आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड टू लाइकिंग माई वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. So this is first example. Now we have here 1 2 3 4 5 blanks. So according to 5 blanks अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास options हैं 3 through to 6 then 8. So first you have to scan the paragraph, because sometime क्या होता है कि the answer is given within the paragraph. So why are the moths fatally attracted to the light? So यहाँ पे moths की बात हो रही है. It is like a insect. One dash is that the moths use light to dash. This explanation doesn't tell us why in some of the moth species only males are highly attracted. What's dash? If navigation could probably only happen to the species that migrate, a moth is not a migratory species. Most of the time such moths are not migrating, and these most species do not migrate at all and thus have no need of navigation. So यहाँ पे हमारे पास navigation word use हो रहा है. You can say कि here it is navigation, और उसके बाद हमारे पास option में भी navigate है. So sometime you can say कि your answer is given within the paragraph. So first one is, why are moths fatally attracted to the light?
वन इज दैट, सो वन क्या है कि वो लाइट की तरफ अट्रैक्टेड क्यों है, सो उसका उसने यहाँ पे दिया कि दैट द मॉथ्स यूज लाइट, कि वो जो मॉथ्स हैं वो इंसेक्ट्स जो हैं वो लाइट को यूज़ करते हैं, इट मीन्स वो लाइट को यूज़ करते हैं, इट मीन्स दिस इज़ द सोल्यूशन, कि वो अट्रैक्टेड जो है लाइट से वो इसलिए हैं, और वो लाइट को यूज़ किस लिए कर रहे हैं, टू डैश, सो टू हेयर इट इज़, देन वी विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, द आंसर इज़ गिवन हेयर, नेविगेशन, आंसर इज़ गिवन हेयर नेविगेशन, नेविगेट मीन्स कि वो नेविगेट कर सके, वो मूवमेंट कर सके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगी, नेविगेट। सो दिस एक्सप्लेनेशन, सो दिस इज द रीजन कि वाई दे आर यूजिंग द लाइट, सो जो ये एक्सप्लेनेशन है डजंट टेल अस वाई इन सम ऑफ द मॉथ स्पीशीज ओनली मेल्स आर हाईली अट्रैक्टेड, तो कह रहा है कि जो ये एक्सप्लेनेशन है वो हमें ये नहीं बता रही है कि जो मेल्स हैं वही सिर्फ ज़्यादा अट्रैक्टेड है एज कम्पेयर टू दी फीमेल इंसेक्ट्स, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस एक्सप्लेनेशन, जो ये एक्सप्लेनेशन है बट वो हमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं बता रही है, तो यहाँ पे हमारे पास बट नहीं है, सो बट को अगर हमने सेकंड सिनोनिम लेना है देन वी हैव हाउएवर, सो यहाँ पे क्या आएगा, हाउएवर, हाउएवर मीन्स हालांकि, जो ये चीज़ है हमें वो चीज़ नहीं बता रही है। सो व्हाट्स डैश, सो ये चीज़ पता चली, उसके अलावा क्या है, इफ़ नेविगेशन कुड प्रॉबली ओनली हैपन टू दी स्पीशीज दैट माइग्रेट, कि नेविगेशन सिर्फ उन्हीं के लिए जो माइग्रेट कर सकती हैं, सो मॉथ एक माइग्रेटर स्पीशीज नहीं है, तो इट मीन्स ये चीज़ भी पता चली है, उसके साथ हमें ये चीज़ भी पता चल रही है, सो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, इम्प्रूवमेंट, बिहेवियर, मोर, प्रेडिक्ट या येट, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसके अलावा और क्या है, सो व्हाट्स मोर। नाउ यहाँ पे फुल स्टॉप है, देन सम टाइम जो ऑप्शन गिवन होगा विद कैपिटल लेटर गिवन होगा, सम टाइम नहीं भी गिवन होगा, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको ब्लैंक जो आ रही है वो फुल स्टॉप के बाद आ रही है तो जो ऑप्शन गिवन है वो कैपिटल लेटर के साथ ही गिवन होगा, बट सम टाइम इट कैन बी, सो यू कैन ईजली चूज, तो यहाँ पे कैपिटल के साथ हमारे पास क्या है, येट एंड ईच बिहेवियर, अब उसने यहाँ पे ये बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जो मॉथ्स हैं वो माइग्रेट नहीं करते हैं, सो इंडीड मतलब वास्तव में मोस्ट स्पीशीज डू नॉट माइग्रेट एट ऑल एंड दस हैव नो नीड ऑफ नेविगेशन, सो वो माइग्रेट ही नहीं कर रहे हैं तो इसलिए उनको कोई नीड नहीं है नेविगेशन की, तो यहाँ पे क्या हो गया, येट, क्योंकि ईच बिहेवियर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं बनती है, तो मीन्स अभी तक का जो टाइम है, सो लेट्स चेक द आंसर, सो दीज आर दी answers. So next option, ये options given है और ये blanks given है, coastal fish farm seems to do less harm to nearby plants and animals than previously believed, तो ऑलरेडी हमने ये पैराग्राफ मैंने रीड करा हुआ है, सो लेट्स स्टार्ट, यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस पैराग्राफ, यू कैन रीड दिस पैराग्राफ, सो कोस्टल फिश आर्म्स सीम टू डू लेस हार्म, सो वो कह रहा है कि जो ये फिश आर्म्स है, फिश फार्म्स हैं वो लेस हार्मफुल हैं टू नियर बाई प्लांट्स और एनिमल्स, जो उनके नियर बाई प्लांट्स और एनिमल्स हैं, देन प्रीवियसली बिलीव्ड, जो हम पहले बिलीव करते थे, तो ये हमें एक न्यू स्टडी में पता चला है, अ न्यू स्टडी, सो अ न्यू स्टडी रिकवर है, placed surprisingly reveals, then extremely effects reported disposed revise या operate, बट एक जो न्यू स्टडी है वो हमें क्या बताएगी, सच बताएगी, तो यहाँ पे हमारे पास रिवाइज होता है, एक चीज़ कर लिया दोबारा उसको कर रहे हो, तो रिवाइज ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिवील, रिवील मतलब जो सच्चाई है उसको बताना। सो नेक्स्ट है, एंड मेरीन इकोसिस्टम कैन डैश फ्रॉम दिस डैमेज, तो वो आगे मेरीन इकोसिस्टम्स की बात कर रहा है कि वो इस डैमेज से, तो इस डैमेज से वो क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, प्लेस्ड नहीं करेंगे, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंगली कुछ नहीं आएगा, रिपोर्टेड या डिस्पोज्ड भी नहीं आएगा, तो हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं फ्रॉम दिस डैमेज, तो इट मीन्स वो इस डैमेज से बच रहे हैं, सो बच रहे हैं इट मीन्स, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, रिकवर, तो मेरीन इकोसिस्टम इस डैमेज से रिकवर कर रहे हैं सरप्राइजिंगली फास्ट, मतलब जितना फास्ट होना चाहिए उससे ज़्यादा फास्ट वो उस चीज़ को रिकवर कर रहे हैं, देन वी विल टेक हियर सरप्राइजिंगली, बट द एनालिसिस ऑफ अ सिंगल
farm in a dash for a island over nearly a year also shows that these facilities need to be dashed carefully, and there is a limit to how many can dash in a particular area before its biodiversity suffers lasting harm. In coastal farm, fish live in large cages hanging from pontoons on the surface. Fish and uneaten food sink to the seabed, affecting its ecosystem. Badly managed farms can also have serious dash on the surrounding water column. सो यहाँ पे उसने बोला है कि ऑल्सो शोज दैट दीज फैसिलिटीज़, जो ये फैसिलिटीज़ हैं, नीड टू बी डैश केयरफुली. सो नीड टू बी डैश मीन्स कि उन जो फैसिलिटीज़ को है वो हमें एक तरह से रखना है. सो रखना है मतलब किसी चीज़ के लिए वो प्लेस करने की बात कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा वर्ड है, नीड टू बी. सो बी है तो ईडी फॉर्म ही आएगी. सो ईडी फॉर्म क्या है हमारे पास, प्लेस्ड या रिपोर्टेड या डिस्पोज. तो डिस्पोज नहीं हो सकता, रिपोर्टेड की यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्लेस्ड. एंड लिमिट टू हाउ मैनी कैन dash in a particular area before its biodiversity suffers lasting harm. तो इतने जो हैं मतलब how many can dash in a particular area, तो अगर हम उनको प्लेस कर रहे हैं, अगर हम उनको एक पोजीशन दे रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या करेंगे हमारे पास, ऑपरेट. नाउ affecting its ecosystem, badly managed farm can also have serious dash ऑन द सराउंडिंग वाटर कॉलम. तो उनके सीरियस क्या होंगे, जो बैडली मैनेज फार्म्स हैं, तो सीरियस क्या हो सकते हैं यहाँ पे, इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं बन रहा है. तो यहाँ से हम ऑप्शंस को कैसे चूज कर सकते हैं, तो यहाँ उसने बोला है कि डैमेज फास्ट. फास्ट है मतलब जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, तो रिकवर हो गया और सरप्राइजिंगली हो गया. तो अब उसने बोला है कि शो कर रहा है, ये डाटा हमारे पास शो कर रहा है नीड टू बी. सो बी से आप गेस कर सकते हैं ईडी फॉर्म आएगी. सो ईडी फॉर्म आप चूज कर सकते हैं कौन कौन सी हैं, कौन सी यहाँ पे करेक्ट है. सो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑपरेट. सो लेट्स चेक द आंसर. सो जो सीरियस है मीन्स सराउंडिंग, तो सीरियस और इफेक्ट एक कॉलोकेशन है. सो वी कैन चूज द ऑप्शन easily. So next is, the University of Story feature films are dash they tell stories. Even films based on the dash events will fictionalize them in order to produce drama to telescope time to avoid being filled up with too many dash. अब यहाँ पे उसने बोला है द यूनिवर्सैलिटी ऑफ स्टोरी फीचर फिल्म्स. जो स्टोरी फीचर फिल्म्स होती हैं आर डैश दे टेल स्टोरीज इवन फिल्म बेस्ड ऑन डैश इवेंट्स. तो उसने बोला कि जो स्टोरी फीचर फिल्म्स हैं वो हमें स्टोरीज बताती हैं, बट जो फिल्म्स हैं वो बेस्ड होती हैं ऐसे इवेंट्स पे, फिक्शनलाइज. सो फिक्शनलाइज वर्ड से आप समझ सकते हो कि जो ट्रू इवेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे आप फिक्शनलाइज वर्ड से ईजिली चूज कर सकते हो ट्रू इवेंट्स. सो हियर द ऑप्शन इज ट्रू. नाउ we will do the first option later. Now to avoid being filled up with too many dash. अब too many है, so many है तो मतलब यहाँ पे plural आएगा. so plural हमारे पास यहाँ पे क्या है, people है, kinds है या conclusion है. तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, makeup है, minor है और यहाँ पे share है. बट too many अगर हम देखें तो यहाँ पे characters भी हैं और सिंपली टू बी मोर इंटरटेनिंग. तो यहाँ पे प्लूरल ये पड़ा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सिंगुलर. तो अब उसने बोला है कि इंटरटेनिंग है, तो इंटरटेनिंग जो होते हैं वो करेक्टर्स ही मूवी को बनाते हैं. सो यहाँ पे पीपल वर्ड है हमारे पास, वो नहीं आ सकता. और यहाँ पे माइनर करेक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि वो ट्रू इवेंट्स फिल्म की बात कर रहा है. उसके बाद उसने स्पेशल इफेक्ट मूवीज की बात करी है एंड देयर प्लॉट्स देन ट्रीटमेंट. सो वी विल टेक हियर minor characters. Now, feature films are usually summarized by their plots in the advance publicity, in the TV guide, in review and in conversations. Films may differ from other dash of narrative, literary fiction or television drama. So other films may differ from other dash of narrative,
फिक्शन और टेलीविज़न ड्रामा। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें उसने बोला है कि ये फिक्शनलाइज मूवी है जिसमें हम ट्रू इवेंट्स की बात कर रहे हैं। इट मीन्स दीज आर दी नैरेटिव। सो नैरेटिव लाइक यू कैन से कि इट्स सो टेलिंग अ स्टोरी। सो लेट्स एट नैरेटिव्स। नाउ अब उसने बोला कि जो ये फिल्म्स हैं वो डिफर करती हैं अदर। सो अदर मीन्स मल्टीपल, क्योंकि अदर वर्ड ऑलरेडी एक तरह से प्लूरल वर्ड है। सो यहाँ पे प्लूरल आ सकता है। फॉर इंस्टांस इन द मीडियम used and the representational convention, they do however dash with the literary fiction and television drama the basic structure and functions of narrative. So यहाँ पे तो narrative confirm है। Much work has done by researchers in the field known of this and structure and function of the narrative. Their dash are of a great use of students to the feature film. तो यहाँ पे उसने सारे वर्क की बात करी है। तो देयर मतलब उन सभी का जो वो होगा वो ग्रेड यूज होगा स्टूडेंट्स के लिए ऑफ द फीचर फिल्म। सो लास्ट वन क्या आ गया हमारे पास, शेयर, सॉरी कंक्लूजन। नाउ फिल्म्स में डिफर फ्रॉम अदर। सो अदर मीन्स अदर पीपल नहीं हो सकता, कैंडिड नहीं होगा, अदर काइंड्स। They do, however, dash with literary fiction and television drama, the basic structure and function of narrative. So I think the correct option here is share. So let's check the options first. So first is narrative. You can easily choose narrative because we have so many words like this in the passage. ट्रू इवेंट्स है क्योंकि फिक्शनलाइज की बात कर रहा है। अब वो डिफर कर रहा है तो अदर साइड से ही डिफर करेगा। सो साइड्स नहीं है तो हम यहाँ पे काइंड्स ले रहे हैं। एंड में वो कंक्लूजन नहीं बता रहा है और शेयर विद द लिटरेरी फिक्शंस। डेवलपिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग हेल्प स्टूडेंट टू बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। मैनी ऑफ अस हैप्पीली ड्राइव अ कार। तब उस यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आपके पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग है तो हम जो हमारे पास ऑल अराउंड हैपन हो रहा है वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो मैनी ऑफ अस हैप्पीली ड्राइव अ कार। मोस्ट ऑफ द पीपल विल ड्राइव द कार विदाउट व्हाट गोज ऑन अंडर द बोनेट। मतलब वो कार को ड्राइव करते हैं बट उनको ये नहीं पता होता कि बोनेट के जो अंडर है वो क्या है। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग। So it is it necessary for children to dash how to program computers? तो टू है, we will use first form of verb. So यहाँ पे उसने बताया कि इसलिए ये जो वर्ड है वो इस चीज़ से रिलेटेड कर रहा है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ करना है। सो यूज़ वर्ड यहाँ पे नहीं है। सो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू प्रोग्राम computers. Because some experts say coding is one of the human skill. So coding जो है it is an important skill for humans that will become dash as artificial intelligence grow. It means ये जो चीज़ है वो पुरानी हो जाएगी जब artificial intelligence grow करेगी. So पुरानी word यहाँ पे old नहीं है. So हमारे पास option क्या है, obsolete. It's easy. Now, since 2014, the principles of computer programming have dash on England's curriculum. अब वो 2014 की बात कर रहा है कि तब से लेके वहाँ पे जो इंग्लैंड करिकुलम है उन्होंने जो एजेस ऑफ 5 और 6 है उनके लिए प्राइमरी स्कूल में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी है। सो यहाँ पे वर्ड है ऑन, तो हमारे पास है इंट्रोड्यूस, हैव है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, तो हमारे पास थर्ड फॉर्म है इंट्रोड्यूस, फीचर्ड या डम्प्ड। सो डम्प्ड होता है कि आपने कचरा डाल दिया है। सो इंट्रोड्यूस और फीचर्ड दोनों हो सकते हैं। सो इंट्रोड्यूस अगर हम होता तो यहाँ पे इन होना था, बट प्रेपोजिशन हमारे पास क्या है यहाँ पे ऑन, सो वी विल यूज फीचर्ड। सो नेक्स्ट इज that they should learn to understand what computers work and try to solve problems as a computer might. तो उसमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि they should learn, students should learn कि learn to understand what computers work
को जो कंप्यूटर का वर्क है वो क्या है, एंड ट्राई टू सॉल्व प्रोग्राम्स एज अ कंप्यूटर माइट, कि उस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कि जो एज अ कंप्यूटर करता है. सो दैट इज व्हाट मेक्स, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो लेट्स चेक द आंसर्स. Understanding, learn, then obsolete means old, featured, then makes. Now these are the options. So जिसमें आप फर्स्ट श्योर हैं तभी आपने वो ऑप्शन चूज करनी है. Low fertility is a concern for many OECD countries as they face the prospect of population aging. So यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो रिलेटेड बात हुई है वो फर्टिलिटी की बात हुई है. So this article makes dash, between वर्ड आ गया. So we will choose the option according to the between. Now here it is Australia and 7 other OECD countries in fertility rates between again 1970 and 2004. So this is the comparison rates between 1970 and 2004. So this is the comparison, because this is the comparison between Australia and 7 other OECD countries. So we will take here it a comparison. Now changing age dash of fertility are also compared. So you can also choose comparison from this word and show that for most of the countries women are dash childbirth and having fewer babies. Now changing age gaps या patterns, sense notions नहीं आएगा, accelerating नहीं आएगा, associations नहीं आएगा, postponing भी नहीं आएगा. नाउ चेंजिंग एज, जो एज चेंज हो रही है और उसको उन्होंने फर्टिलिटी के साथ कंपेयर करा है एंड उसके बाद उन्होंने ये रिजल्ट्स शो करे हैं. सो मीन्स चेंजिंग एज पैटर्न्स, क्योंकि गैप नहीं आएगा. नाउ वुमेन्स आर डैश चाइल्ड बर्थ एंड हैविंग फ्यूअर बेबीज. अब वुमेन क्या कर रही हैं, चाइल्ड बर्थ को ऐसा कर रही हैं कि हैविंग फ्यूअर बेबीज, उनके जो बेबीज हैं वो फ्यूअर हैं. देन वी विल से पोस्टपोनिंग. द डैश ऑफ वुमेन एजुकेशन लेवल्स एंड रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद फर्टिलिटी आर ऑल्सो एक्सप्लोर्ड. द डैश ऑफ वुमेन्स एजुकेशन लेवल and rates of employment with fertility are also explored. Now here it is associations, means इस वर्ड को इसके साथ एसोसिएट कर रहा है कि वुमेन एजुकेशन लेवल और जो उनके रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको भी हम फर्टिलिटी के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको भी हम उसके साथ रिलेट कर रहे हैं. लेट्स चेक द आंसर. सो कंपैरिजन मीन्स इन के बीच कंपैरिजन हो रहा है. यू कैन ऑल्सो चूज द ऑप्शन फ्रॉम हेयर. देन चेंजिंग एज गैप्स नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास विद एस आएगा जो वर्ब आएगी. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैटर्न्स. सो यहाँ पे आपने ऑप्शन लेनी है हैविंग फ्यूअर बेबीज. सो हैविंग फ्यूअर बेबीज मीन्स पोस्टपोनिंग बिकॉज नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेलरेटिंग. सो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमारे पास ब्लैंक गिवन है. सो दिस इज द लास्ट वन. So this is teenage daughter. It's important filling the blanks. It is repeated most of the time. Your teenager daughter gets top marks in school, captains the debate team and volunteers at a shelter for homeless people. जो आपकी टीनेज डॉटर है उसके स्कूल में भी मार्क्स ज़्यादा हैं, वो डिबेट टीम की कैप्टन भी है और वॉलंटियर एज अ शेल्टर फॉर होमलेस पीपल भी काम कर रही है. बट वाइल ड्राइविंग द फैमिली कार शी टेक्स्ट मैसेजेस हर बेस्ट फ्रेंड एंड रियर एंड्स अनदर व्हीकल. मीन्स सेम टाइम वो टेक्स्ट मैसेज भी कर रही है और व्हीकल भी ड्राइव कर रही है. सो नेक्स्ट उसने बोला है हाउ कैन टीन्स बी सो क्लेवर. क्लेवर इन द सेंस कि दे आर मल्टीटास्किंग. Accomplished and responsible and reckless dash means they are doing the same thing. Clever, accomplished, responsible and reckless means ये सारी चीज़ें वो सेम टाइम पे कैसे कर सकते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है at the same time. Your sentence should make a sense. Easily recording to two physicians at Children's Hospital Boston and Harvard Medical School who have been. Now here it is who have been means third form of verb.
the dash structure and chemistry of the dash brain. Now 3 options, 3 blanks are in a line. So who have been dash. Now who have been, sometime we will use third form of verb and sometime we will use ing, because the sequence is like we will use first form of verb with ing. So we will see here कि हमारे पास ऑप्शंस हैं शार्प, केमिकल, डेवलपिंग, कॉन्टैक्ट, रिस्पेक्टिवली, एक्सप्लोरिंग, यूनिक, एडोलोसेंट एंड डेवलपमेंट. तो यहाँ पे कोई भी ब्लैंक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है. इट मीन्स आई एन जी. नाउ आई एन जी इज डेवलपिंग, एक्सप्लोरिंग. सो इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी, ये जो उसने फिजिशियंस की बात करी है, तो जो फिजिशियंस हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो हियर इट इज एक्सप्लोरिंग द डैश स्ट्रक्चर नाउ एंड द केमिस्ट्री ऑफ डैश ब्रेन. सो टीनेजर्स की बात हो रही है, अडल्ट ब्रेन की बात हो रही है, तो मीन्स अडोलोसेंट यहाँ पे आ गया. देन स्ट्रक्चर क्या होएगा, यूनिक होएगा. The unique structure and the chemistry of adolescent brain. So says this professor of neurology, it's a paradoxal time of dash. These are people with very dash brain, but they are not quite sure what to do with them. So it is a paradoxal time of means जब आपका ब्रेन इतना शार्प है, मीन्स टीनेजर्स की बात हो रही है, इट मीन्स वो डेवलपिंग स्टेट में है. सो डेवलपिंग ऑप्शन है बट वी विल यूज डेवलपिंग और डेवलपमेंट. सो इट्स अ पैराडॉक्सल टाइम ऑफ डेवलपमेंट because it is not suited with the ing form. So these are the people with dash brains. यही ऑप्शन है. सो इन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग sharp brains. Let's check the answer. So you can easily choose the options, but first you have to choose the option in which you are sure कि this is the correct option for that particular blank. So reading and writing are contributing around 15 marks in the reading section only. So my motive to make these videos is like कि student who can't afford the tuitions can learn from my videos. So if you have a queries and you have any suggestions and you want to make some टॉपिक्स की मैम आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है या इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप वीडियो बना सकते हो, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन ऑल्सो मेल मी amarpteclasses@gmail.com. and thank you so much for watching my videos. Do subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Thank you so much.